electron transport system. Now, the electron transport system, it is consist of different types of the electron carriers, which is present along the inner mitochondrial membrane, and the electron when transferring through this different electron carrier, the synthesis of ATP occurs. तो ये ATP synthesis इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इट ऑकर्स इन थ्री डिफरेंट steps. The first step is glycolysis, second step is the Krebs cycle, and third step is the electron transport system. Now, this electron transport system, it is related with the oxidative phosphorylation. Okay, oxidative phosphorylation. So what is meant by oxidative phosphorylation? You come to know about this one. तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जो थर्ड स्टेप कहलाती है, इसमें क्या होता है जनरली, व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH2 और FADH2 इनका ऑक्सीडेशन होता है और इनकी ऑक्सीडेंस से ATP सिंथेसिस होती है. So that is known as the oxidative phosphorylation. The oxidative phosphorylation in which the oxidation of these reducing substances, that is NADH and FADH, they undergo oxidation, and after their oxidation they release the electron, and their electron, it is transferred via different electron carriers of the electron transport system, so that during this transport the electric potential is generated that transfer the facilitated transport of the H plus ion through the ATP synthase enzyme that results in the synthesis of ATP, and therefore this is known as oxidative phosphorylation. इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि NADH और FADH इनका ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ATP सिंथेसिस की जा रही है, इसीलिए इसे हम oxidative phosphorylation कहते हैं. So this is the electron transport system in which the different electron carriers present. Out of these electron carriers, most of them are the enzymes. वो कौन से एंजाइम है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Now this electron transport system, it is also known as the terminal oxidation. इसे हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं. जैसे कि आपको पता है, हमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन होता है C6H12O6 ओके प्लस 6O2, तो यहां पर जो O2 है, अब तक कहीं पर भी क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस या लिंक रिएक्शन, कहीं पर भी O2 का, इस ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कहीं पर भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ हम कहते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑकर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सिंथेसाइज द एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O with the synthesis of 36 to 38 ATPs. सो ये हम रिएक्शन लिखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए. मगर अब तक हमने जो देखा, डिस्कस किया, उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन नहीं था. मगर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं NADH और FADH के ऑक्सीडेशन के बाद, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को सबसे लास्ट में जो एक्सेप्ट करता है वो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इसीलिए इसे हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेज कहते हैं. इस बात को ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ड्यूरिंग दिस टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेज एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, while this transport of electron and terminal oxidation stage, the synthesis of ATP occurs. इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, और इन दोनों के साथ ATP सिंथेसिस किया जाएगा. ये कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हम इसे कहेंगे. ये कैसे होता है, इसे हमें डिस्कस करना है. नाउ दिस इज द
mitochondria. As we know that this mitochondria, it is consist of outer and inner membrane, and their inner membrane, it get enfolded and form the finger like projections, and these finger like structures are known as the cristae. Along this cristae, it contain the different electron carriers that take part in electron transport system. तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं? दीज आर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इसमें मोस्ट ऑफ देम दे आर द एंजाइम, जैसे कि दिस NADH dehydrogenase, it is known as the, that is complex first, then complex second, that is known as succinate dehydrogenase. It is the only enzyme of the Krebs cycle that remains bind with the inner mitochondrial membrane. The third one is the cytochrome BC1 complex, and it is also known as cytochrome reductase enzyme. That is the complex third. And complex fourth, it is known as the cytochrome C oxidase. The terminal oxidation that occur is the complex fourth. इसे याद रखना है. Then out of these four, these are the four different enzymes or the complexes through which the transportation of electron is carried out for the terminal oxidation stage. But this ATPase enzyme, sometimes it is also known as the complex fifth. But this complex fifth, it do not participate in the transport of the electron, while it participates in the ATP synthesis. ये जो ATP synthesis है ये किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये ATP synthesis करता है. It transfer, okay, it helps in the transportation of the H plus ion. The facilitated diffusion of the H plus ion is carried out by this ATP synthase enzyme for ATP synthesis. तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करते हैं. ओके, सो जैसे कि हमने आपको बताया कि क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH जो सिंथेसाइज होते हैं, NADH और FADH, दे अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन. ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं. This NADH2, it is synthesized in glycolysis process. We know that in glycolysis process, the PGAL, okay, 3-phosphoglyceric acid, okay, it undergo the oxidation and reduces the NAD into NADH. ये हमने glycolysis में डिस्कस किया था, okay, after cleavage stage. Then FADH2. Now this NADH2, it is synthesized in 3 different ways or in 3 different processes. The first one is the glycolysis, the second one is the link reaction, and fourth one is the Krebs cycle. We know that during the glycolysis, from 1 glucose to NADH2 is synthesized. During link reaction, the 2 pyruvic acid converted into 2 acetyl coenzyme and synthesize the 2 NADH2. While in Krebs cycle, 1 acetyl coenzyme, when enter in Krebs cycle, it synthesizes the 3 NADH2 and 1 FADH2. Okay, for 2 acetyl coenzyme during the Krebs cycle, the 2 acetyl coenzyme, it synthesizes 6 NADH2 and 2 FADH2 with single substrate level phosphorylation. हम यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिस्कस कर रहे हैं. ये जो रिड्यूस सब्सटेंस है NADH और FADH2, इनका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है and their oxidation is occur due to the enzyme. NADH का ऑक्सीडेशन करने वाले एंजाइम का नाम है NADH dehydrogenase, जिसे हम NAD कोफैक्टर, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहते हैं. FADH2 का ऑक्सीडेशन करने वाला, दैट इज दिस वन इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है. ओके, सो देखते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH ऑकर्स, देन ट्रांसपोर्ट. देखिए यहां पर आपको 3 स्टेप में इसे स्टडी करना है. पहली स्टेप होगी ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2,
देन सेकेंड स्टेप होगी द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 to the, that is complex number first to second to the fourth. Okay, then second one, then last one is the ATP synthesis. Okay, oxidation of NADH, transport of electron, एंड लास्टली ATP सिंथेसिस. तो ये 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वैसे ही FADH2 के लिए पहले ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2, then transport of the electron from FADH2, then third one is the ATP synthesis by the oxidation of the FADH2. तो NADH2 और FADH2 इन दोनों के ऑक्सीडेशन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के बाद ATP सिंथेसिस होगा. ये कैसे होगा उसे हमें डिस्कस करेंगे. सो व्हेन NADH2 undergo the oxidation, they synthesize or release the 2H plus and 2 electron, while the oxidation of FADH2, it synthesizes 2H plus and 2 electron. The oxidation of NADH2 is carried out by NADH dehydrogenase. आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा. This NADH2, it is oxidized by the complex first, that is NADH dehydrogenase. Then this FADH2, it is oxidized by the succinate dehydrogenase enzyme. So after this, the electron from NADH, it is transporting via the different electron carriers. तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से है और ये लास्ट में ऑक्सीजन को मिलता है, ये क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे. Here the electron from NADH2, it is released after the oxidation of NADH2 and it is transporting via the 3 different complexes. अभी आपने देखा कि कौन से कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को. यहाँ ऑक्सीडेशन हो चुका है NADH का. अब NADH का ऑक्सीडेशन होने के बाद इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, थर्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के जरिए ये ट्रांसफर हो रहा है. एंड while transferring the electron के ट्रांसफर के समय, while transferring the electron, the H plus ion from matrix, it is transporting to the पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है जहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन NADH के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसे हम ब्लू लाइन से यहां इंडिकेट करेंगे. ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, देन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, यहां तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं. और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के द्वारा जब ये ट्रांसफर होता है, उस समय उस कॉम्प्लेक्स के द्वारा H प्लस आयन ये मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, नो डाउट. सो देखिए, तो H प्लस फ्रॉम मैट्रिक्स इट इज ट्रांसफर टू द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की ओर आएंगे तब ये H प्लस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इंटर हो जाएंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड की ओर, दैट इज साइटोक्रोम रिडक्टेज की ओर जब ट्रांसफर किए जाएंगे, इसे ए लिपिड सोल्यूबल अब इक्विनोड, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड की ओर ट्रांसपोर्ट करता है. और इसके ट्रांसपोर्ट के समय दैट इज क्यूनोन साइकिल कंप्लीट होती है और इस क्यूनोन साइकिल की वजह से ये H प्लस आयन ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में रिलीज कर दिए जाते हैं. और जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड से, जिसे हम साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं, जब ये थर्ड से इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ की ओर ट्रांसफर किए जाते हैं, उस समय एक्स्ट्रा H प्लस आयन भी यहां पर रिलीज कर दिए जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट. सी, ये इलेक्ट्रॉन
साइटोक्रोम BC1 जिसे हम साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ NADH from this complex third it is transferred to the complex 4. Complex 4 is known as cytochrome oxidase because oxidation occur here. Okay, so यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ की ओर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए साइटोक्रोम C होता है। साइटोक्रोम C ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ, एंड दिस कॉम्प्लेक्स 4 it is known as cytochrome oxidase, and it transfer the electron to the molecular oxygen, hence the terminal oxidation occur here. और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं उस समय 2H+ ये मैट्रिक्स से इंटर होकर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर किया जाता है। सो इस तरह से जो NADH के द्वारा NADH के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड से फोर्थ की ओर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए से कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के द्वारा 4H+ आयन ये मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इंटर हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के द्वारा मैट्रिक्स से दैट इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 2H+ यहाँ इंटर हो रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के द्वारा 2H+ ये मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इंटर हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से टोटल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए NADH के जरिए जो यहाँ H+ आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसका नंबर है दैट इज नियर अबाउट 8। ओके, दैट इज द 8। कहीं पर रेफरेंस बुक में 10 भी दिया है। ओके, सो दैट इज द केस। ओके, देन क्योंकि ये जो क्यूनिन साइकिल है इसके द्वारा एक्स्ट्रा H+ आयन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इसी वजह से। ओके, सो आपने इसे देखा होगा, ठीक है, कि किस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, हाउ डज द ऑक्सीडेशन ऑकर। ओके, देखिए ऑक्सीडेशन NADH का ऑक्सीडेशन होकर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड और फोर्थ की ओर ये इलेक्ट्रॉन आया है, एंड लास्टली दिस इलेक्ट्रॉन it is accepted by the oxygen, molecular oxygen, and that undergo the oxidation. चलिए अब ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 के बारे में देखते हैं। When this FADH2 oxidize, it release the electron, and electron from this FADH2 it is transporting, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है it is transporting from this complex second that is succinate dehydrogenase to the complex 3, then from complex 3 to the complex 4. तो ये शॉर्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन का रूट है FADH2 का ये शॉर्ट है, और इसकी वजह से यहाँ पर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कम से कम H+ आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगर सवाल ये होता है कि NADH के ऑक्सीडेशन से ज्यादा H+ आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, या FADH2 के ऑक्सीडेशन के द्वारा FADH2 का जो ऑक्सीडेशन होता है उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा ज्यादा H+ आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो आंसर रहेगा NADH। NADH के ऑक्सीडेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड से फोर्थ की ओर ट्रांसफर होता है, जिसके जरिए से जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए से जो H+ आयन मैट्रिक्स से इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो नियरली 8 to 10 H+ आयन होते हैं। जो H+ आयन मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर किए जाते हैं वो नियरली 8 to 10 होते हैं। ओके, मगर जो इलेक्ट्रॉन इस FADH2 के ऑक्सीडेशन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड से थर्ड से फोर्थ की ओर ट्रांसफर होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो H+ आयन ट्रांसफर किए जाते हैं मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में वो सिर्फ 6 H+ आयन होते हैं, जो मैट्रिक्स से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से
ये H प्लस आयन मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओके, सो अगला पॉइंट, सो ये जो H प्लस आयन इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो जमा हो रहे हैं, इट इंक्रीज द it increase the H plus ion concentration, but it decrease the pH. That is, the perimitochondrial space become acidic due to high H plus ion, and this acidic pH it stimulate the base of ATP synthase enzyme. तो हमने अभी देखा NADH के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और लास्ट में ऑक्सीजन को मिलता है, और FADH2 के द्वारा भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो सेकेंड से थर्ड से फोर्थ की ओर ट्रांसफर होता है और ये भी ऑक्सीजन को मिलता है। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ NADH एंड FADH इट इज एक्सेप्टेड बाय द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड हेंस द टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑकर हियर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेप भी कहा जाता है। सो आपने यहां देखा होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए हैं। ओके, सी हियर, तो NADH2 का ऑक्सीडेशन होकर ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ये पाथ है, फर्स्ट से थर्ड से फोर्थ की और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिला है। और FADH2 का पाथ दैट इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की ओर, और ये भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहा है। ओके, सो NADH के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इसकी वजह से मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लगभग 8 to 10 H प्लस आयन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और वही FADH2 के इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उस समय मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 6 H प्लस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इस वजह से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इट बिकम्स द एसिडिक। तो ये है पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नीट में और सीटी में पूछा गया है, इसे याद रखना। ओके, द नेक्स्ट वन, अगला पार्ट, सो ये है पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इक्विनोन से जो साइटोक्रोम में जो ट्रांसपोर्ट किए जा रही है इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, वो कहां से कहां होते हैं, वो कहां से कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH from ubiquinone it is transported to cytochrome BC, then cytochrome C1, then cytochrome C, then cytochrome C to copper A, that is the ये cytochrome oxidase का central metal ion है। okay, that is cofactor, then cytochrome A, okay, then copper element to cytochrome A to A3 to copper B, और इससे लास्ट में मिला है that is ऑक्सीजन को। सो ये बात भी पूछा गया है, इसे भी याद रखना। द नेक्स्ट वन, द टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेज, जो इलेक्ट्रॉन NADH और FADH से आया है वो आखिर में किसे मिल रहा है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। बच्चों इसे याद रखना है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मिलता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट इज नॉट द आयोनिक ऑक्सीजन, इट इज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और इसका ऑक्सीडेशन होकर 2H प्लस के द्वारा इसमें H2O बनेगा, that is known as the terminal oxidation stage. The next one, so ये हुआ oxidation of NADH and FADH, transport of electron from NADH and FADH, and third one that is ATP synthesis. ATP synthesis कैसे होता है? देखो सी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से जो H प्लस आयन वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जमा हुए हैं, ये इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बेस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एटीपी सिंथेस के बेस को स्टिमुलेट करता है। द बेस ऑफ एटीपी सिंथेस इज नोन एज द FO पार्टिकल, इसे F0 भी कह सकते हैं आप। देन their head is known as F1 particle. Then the base of ATP synthase it becomes activate when the H plus ion concentration increase in perimitochondrial space. Hence it allow the transport of H plus ion from perimitochondrial space into the matrix. जब ये H plus ion इस ATP सिंथेस के बेस के द्वारा फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा H प्लस आयन
ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में ट्रांसफर किए जाते हैं, उस समय जब 3H प्लस आयोन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो NADH के द्वारा जो सिंथेसिस हो रहे हैं, ओके, तब एक वन दैट इज द व्हेन the electron transporting from NADH and it transfer the H plus ion from matrix into the perimitochondrial space. Hence, the H plus ion of NADH when transporting through the ATP synthase, it synthesize the 3 ATP. तो बच्चों इसे याद रखना है 3 ATP सिंथेसिस कैसे होते हैं। ओके, हमने बताया था आपको कि NADH undergo electron transport system and from one NADH the 3 ATP synthesis occur. ओके, या जो साइटोप्लाज्मिक NADH होता है जो दैट इज डिफरेंट दैट इज गिल्सलर और फॉस्फेट शटल के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसके द्वारा जो साइटोप्लाज्मिक NADH होते हैं उसके द्वारा सिर्फ 2 ही ATP बनते हैं। ऐसे क्यों, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। सो जो 3 ATP यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये 4H प्लस और 4H प्लस और ये 2H प्लस टोटल हो गए हैं 10H plus. Out of this 10H plus, the 9H plus when transporting from perimitochondrial space into the matrix, then it synthesize the 3 ATP. 3 ATP. इसका मतलब ये है कि एवरेज एक ATP सिंथेसिस करने के लिए 3 to 4H plus आयोन 3 to 4H plus आयोन लगते हैं, याद रखना। ओके, इस वजह से NADH2 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसके जरिए से जो 10H प्लस आयन आए हैं उसके द्वारा 3 ATP सिंथेसिस किए जाते हैं। जब ये H प्लस आयन ATP सिंथेसिस के द्वारा मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस समय ATP सिंथेस इट कन्वर्ट ADP एंड IP इनटू ATP। तो ये हुआ ATP सिंथेसिस। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं FADH2 से, तब आपको पता है इसका पाथ जो है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और इसके द्वारा जो H प्लस आयोन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो होते हैं सिर्फ 6। और ये जब 6H प्लस आयोन ये ATP सिंथेस से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तब आपको पता है 3H प्लस के द्वारा एक ATP बनता है, तो 6H प्लस के द्वारा 2 ATP बनेंगे। इसीलिए हमने आपको परसों बताया कि एक FADH2 इट सिंथेसाइज 2 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, क्योंकि इसके द्वारा लेस H प्लस आयोन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इसी वजह से। ओके, सो ये था ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों यहाँ एक सवाल और भी आता है कि वो ये है कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जो H प्लस पंप और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। दिस NADH hydrogenase it acts as a both the electron carrier as well as the hydrogen pump, H plus ion transporter. Then complex third, this complex third, it acts as the electron transport as well as the H plus ion transporter. Then complex third, second, this complex second, it acts as the both electron transporter and H plus ion transporter. ये H plus अबिक्विनोन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं। Then complex number 4, it also acts as the electron carrier as well as proton pump. But ATP synthase, this ATP synthase enzyme, जिसे कभी कभी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी कहा जाता है, इसके द्वारा सिर्फ H प्लस आयोन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इट डू नॉट ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट्स एज अ हाइड्रोजन पंप, इट डू नॉट ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, सो ये था ATP सिंथेसिस। ओके, सो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, सो दैट इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये आपको याद रखना है। Then here we have completed the oxidative phosphorylation as well as the aerobic respiration. Okay,
तो एक बात आपको बता दे, ठीक है,